بچوں کسی جنگل میں ایک تالاب تھا جس میں بہت سی بطخیں اور ان کے پیارے پیارے بچے سارا دن تیرا کرتے تھے۔ یہ ساری بطخیں مزے سے چاروں طرف گھومتی پھرتی، سوائے ایک بطخ کے جو بیچاری بہت دن سے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے انڈے سہتے سہتے کافی دن گزر گئے تھے اور وہ اکیلی بیٹھی بیٹھی اکتا گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی ساتھی بطخوں کو کوستی، ارے ان میں سے کوئی نگوڑی تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آ کر بیٹھ جایا کرے تو کچھ وقت گپ شپ میں بھی گزر جائے، میں یوں اکیلی بور تو نہ ہوں۔ مگر آخر اس کے انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہوئی اور ایک دن اچانک اس کے نیچے رکھے ہوئے انڈوں میں سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ پیاری پیاری آوازیں سن کر اس کا جی خوشی سے بھر گیا، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ انڈوں میں سے بچے نکل رہے ہیں۔ بطخ نے انڈوں پر سے ہٹ کر دیکھا تو سبھی انڈوں میں سے بچوں نے اپنے سر نکال لیے تھے اور آہستہ آہستہ چھلکوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی میٹھی میٹھی آوازوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چاندی کی گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کے سب بچے انڈوں میں سے باہر نکل آئے۔ ان میں سے ایک نے جماہی لے کر کہا، آہا، یہ باہر کی دنیا کتنی بڑی ہے۔ دوسرا بولا، ہاں، انڈے کے اندھیرے خول سے نکل کر یہاں باہر کتنی پھیلی ہوئی جگہ نظر آتی ہے۔ ان کی ماں بطخ اپنے ننھے منھے بچوں کی یہ بات سن کر ہنسنے لگی، ارے تم سمجھتے ہو کہ ساری دنیا بس یہی ہے جو تمہیں یہاں نظر آ رہی ہے؟ ابھی تو یہاں سے آگے ایک بہت بڑا باغ ہے اور اس سے بھی آگے بڑے بڑے کھیت ہیں، آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر بطخ چلنے ہی والی تھی کہ اسے اپنے قریب پڑا ہوا ایک اور انڈا نظر آیا۔ اس انڈے کو دیکھ کر بطخ کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس کے سبھی انڈوں میں سے بچے نکل آئے ہیں۔ ایک اور تعجب کی بات یہ تھی کہ یہ انڈا دوسرے انڈوں سے کافی بڑا تھا۔ پہلے تو بطخ نے سوچا کہ اس انڈے کو یوں ہی پڑا چھوڑ کر چلی جائے، مگر اس کا دل کہتا تھا کہ کچھ بھی ہو یہ میرا فرض ہے کہ اس انڈے کو بھی سہنے بیٹھ جاؤں تاکہ اس میں سے بھی بچہ نکل آئے۔ چنانچہ وہ اس انڈے کو بھی اپنے نیچے حفاظت سے رکھ کر سہنے بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اب نہ جانے اس میں سے بچہ نکلنے کے لیے مجھے کتنے دن اور انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی ملنے والی ایک بوڑھی بطخ ادھر آ نکلی۔ اے بٹیا، تم اب تک بیٹھی انڈے سے جا رہی ہو، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے بچے تو سب نکل آئے ہیں۔ ماشاء اللہ، کیسے پیارے پیارے بچے ہیں، اللہ ان کی عمر بڑھائے۔ ہاں اماں، اور تو سب انڈوں میں سے بچے نکل آئے، لیکن مجھے بعد میں ایک انڈا نظر آیا جس میں سے ابھی بچہ نہیں نکلا ہے، میں اسی کو بیٹھی سہ رہی ہوں۔ اوہ اللہ، یہ کتنا بڑا انڈا ہے! مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ تمہارا نہیں کسی شتر مرغ کا ہے۔ میرے خیال میں تم اسے سہنے کی فکر میں مت پڑو، اس سے تمہیں بیکار میں پریشانی ہوگی۔ نہیں اماں، یہ میرا فرض ہے کہ میں اسے بھی سہ کر اس میں سے بچہ نکالوں۔ اے بٹیا، جیسی تمہاری مرضی۔ بوڑھی بطخ تو اپنا سر ہلاتی ہوئی چل دی اور ہماری رحم دل بطخ اس انڈے کو سہتی رہی، لیکن اسے زیادہ وقت انتظار نہیں کرنا پڑا، کیونکہ کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد اس انڈے میں سے بھی آواز آئی۔ یہ آواز سن کر وہ خوش ہو گئی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس انڈے میں سے ایک بچے کا سر باہر نکلا، مگر بطخ کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ اس نئے بچے کا سر اس کے دوسرے بچوں سے بہت بڑا تھا۔ ذرا سی دیر میں اس بچے کے دو بازو بھی باہر نکل آئے اور پھر آہستہ آہستہ پورا بچہ نکل آیا۔ بطخ اماں اسے دیکھ کر پہلے تو بہت گھبرائی کہ یہ میرا ہی بچہ ہے یا کوئی اور بلا ہے، مگر پھر اسے اس بچے پر بھی پیار آنے لگا اور وہ اسے گلے لگا کر بولی، میرے بچے، تو کیسا ہی بے ڈول سہی، پھر بھی کتنا اچھا لگتا ہے۔ وہ بڑی بھی کہتی تھی کہ تو کسی شتر مرغ کا بچہ ہے، لیکن یہ بھی ابھی پتہ چل جائے گا۔
चलो बच्चों, तुम सब के सब पानी में चलकर तैरो ताकि मैं देखूं कि तुम में से कौन कौन तैर सकता है। सब बच्चे एक एक करके पानी में उतर गए और लगे मजे से डुबकियां लगाने और शप शप छपाके मारने। उन्हीं के साथ वो बड़ा सा बेडौल बच्चा भी मजे से डुबकियां खाता और तैरता रहा। ये बात देखकर बत्तख अम्मा को यकीन हो गया कि वो बच्चा किसी शुतुरमुर्ग का नहीं है, क्योंकि वो मेरे और बच्चों की तरह पानी में खूब तैरता है। बत्तख ने अपने सब बच्चों को पास बुलाया और बोली, बच्चों चलो अब मैं तुम्हें तालाब की और बत्तखों से मिलाऊं। तुम लोग जरा अपने पर पुर्जे ठीक कर लो और गर्दनें सीधी उठा लो। बस ये ठीक है, चलो 1 2 3। उस बत्तख के सब बच्चे जब उसके पीछे पीछे एक कतार में कदम मिलाते हुए चले तो तालाब के आसपास रहने वाले और सब जानवरों की नजरें उन पर पड़ी। खास तौर पर जब बत्तखों ने उन्हें देखा तो आपस में खुसर फुसर करने लगी। लो बहन, ये एक और घराना यहाँ बढ़ गया, अब हम सबके खाने की और भी मुश्किल पड़ जाएगी। लो और देखो, ये पीछे पीछे कैसा बड़ा सा और बेडौल बच्चा चला आ रहा है। ये तो बत्तख का बच्चा मालूम ही नहीं होता, ना जाने क्या भला है। मैं अभी अपने मियाँ को उसे दिखाती हूँ। ये कहती हुई वो अपने मियाँ बत्तखे के पास पहुँची और उससे कहा, देखना जी, ये ना जाने किस जात का बच्चा है, हमारे बीच में रहने को आ गया है, उसकी खबर तो लो। मियाँ बत्तखे ने अपनी बीवी की ये बात सुनकर उसकी हाँ में हाँ मिलाई और झट उस नन्हे बच्चे पर चढ़ दौड़े। बत्तख अम्मा ने जो अपने बच्चे पर यह हमला होते देखा तो उसके बचाव के लिए मुकाबले पर जम गई और दौड़ते हुए बत्तखे पर चीखी, चल दूर हट मुए जालिम, मेरे बच्चे पर क्यों चढ़ा आ रहा है? अरे ये कोई बत्तख का बच्चा नहीं, जरा इसकी सूरत तो देखो। अरे तुझे इससे क्या, ये जैसा भी है मेरा बच्चा है, तू जाके खुद आईने में अपनी शक्ल देख। बत्तखा बड़बड़ाता हुआ अपने घर को चल दिया। उस बेचारे बेडौल बच्चे से उन बत्तखे मियाँ ही को नहीं बल्कि पास पड़ोस के और सब जानवरों को भी जैसे चिढ़ हो गई थी। यहाँ तक कि मुर्गे मुर्गियों ने भी अपनी अपनी जगह कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। अरे जरा देखो तो सही, ये बत्तख के अंडे से कौन भला निकल आए? ये अजीब सा जानवर तो हमारे बीच में रहने के काबिल नहीं। उनमें से कुछ तो बत्तख अम्मा की नजर बचाकर उस गरीब बच्चे को ठोंगे मारती और कहती, निकल कल मुँह है यहाँ से। और तो और उसके दूसरे छोटे भाइयों ने भी ऐसा जाहिर किया जैसे उन सबको उससे शर्म आती है और उन्होंने आपस में तय किया कि हम उसके साथ नहीं खेलेंगे। उसकी माँ बार बार उसे तसल्ली देती, बेटा तू किसी के भी कहने की परवाह न कर, मैं तो तुझे अपना ही बच्चा समझती हूँ ना। आखिर तू भी औरों ही की तरह से तैर सकता है, फिर अगर तू इतना खूबसूरत नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मगर बच्चा रोते हुए जवाब देता, नहीं अम्मा, उससे बहुत कुछ होता है। अगर यहाँ मैं किसी को अच्छा नहीं लगता और कोई भी मेरे साथ खेलना और तैरना नहीं चाहता तो मुझे यहाँ से चला ही जाना चाहिए। आखिरकार उस बेचारे ने यही किया और एक रोज अपनी माँ और भाइयों को छोड़कर चुपके से अकेला निकल पड़ा। ना जाने कितनी देर तक वो यूं ही तैरता चला गया। आखिर चलते चलते वो एक ऐसे दलदल के किनारे पहुंच गया जहां सब जंगली बत्तखें और मुर्गाबियाँ रहती थीं। उसने सोचा कि यहाँ मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, लिहाजा वो यहीं लेटकर सो गया। जब उसकी आँख खुली तो उसके चारों तरफ मुर्गाबियाँ जमा थीं। उन्होंने इस बच्चे को प्यार से सलाम किया और बोली, बच्चे तुम कौन हो? मेरा ख्याल है कि मैं एक बत्तख का बच्चा हूँ। और आप लोग कौन हैं? हम सब जंगली बत्तखें हैं। वैसे तुम हमें बत्तख के बच्चे तो मालूम नहीं होते, मगर खैर अगर तुम हमारे दूर के रिश्तेदार भी हो तो भी खुशी से हमारे साथ रह सकते हो। बच्चा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। मैं खूब अच्छी तरह तैर सकता हूँ और आप सबके लिए कोई बोझ नहीं बनूंगा। वो अभी ये बात कह ही रहा था कि अचानक एक बड़े जोर की आवाज़ आई, जिसे सुनते ही वो सब एकदम वहाँ से उड़ गईं। लेकिन देखते ही देखते उनमें से कई एक तड़पती हुई ज़मीन पर आ पड़ी। ये ज़ोरदार आवाज़ें कुछ शिकारियों की बंदूकों की थीं, जो मुर्गाबियों का शिकार करते हुए इधर आ निकले थे।
बेचारे बच्चे को ये देखकर बहुत ही दुख हुआ कि उसे सहारा देने वाली जंगली बत्तखें उसके सामने मरी पड़ी थी। शिकारियों की फायरिंग से सहमा हुआ बच्चा एक तरफ को जाकर छुप गया। जरा सी देर में ये खौफनाक आवाजें आना बंद हुई तो वो हिम्मत करके फिर आगे बढ़ा, लेकिन उसी वक्त एक दूसरी आफत आ गई। एक कुत्ता जो उधर से गुजर रहा था, उसने जब उस बच्चे को अकेले देखा तो घुर्रा कर झपटा और उसे अपने मुंह में दबोच लिया। बेचारे बच्चे को यकीन हो गया कि अब उसका खात्मा यकीनी है, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। एक ही लम्हे बाद न जाने क्या सोचकर कुत्ते ने उसे अपने दांतों में से छोड़ दिया। वो पट से जमीन पर उलटकर गिर गया। यूं अपनी जान बच जाने पर उसे खुशी तो हुई, लेकिन ये सोचकर दुख भी बहुत हुआ कि मैं इतना बदसूरत हूँ कि एक कुत्ते ने भी मुझे पसंद नहीं किया। वो गमज़दा और निढाल होकर उठा और एक तरफ चल दिया। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई गैबी ताकत उसे किसी खास तरफ ले जा रही हो। चलते चलते वो बहुत दूर एक ऐसे इलाके में पहुंच गया जहां दूर दूर तक पानी भरा हुआ था। उसने खुशी से एक चीख मारी और मज़े ले लेकर उस पानी में तैरने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि कुछ राजहंस उसकी जानब तैरते चले आ रहे हैं। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ये देखा कि दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी और ख़ूबसूरत नस्ल की बत्तखें भी होती हैं। एक शान से गर्दन ताने हुए पानी में तैरती वो उसे बहुत अच्छी लगी। कुछ देर तैरने के बाद सारे राजहंस एक अजीब सी आवाज़ निकालकर हवा में उड़ गए। ये आवाज़ सुनकर बच्चा चौंक पड़ा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसी ही आवाज़ थी जैसे उसके अपने गले से निकलती थी। अब तो उसने तय कर लिया कि उन्हीं खूबसूरत परिंदों के साथ ज़िंदगी गुजारेगा। वो ये सोच ही रहा था कि करीबी झाड़ियों में उसे सरसराहट सी महसूस हुई। उसने सर उठाकर देखा तो उसे झाड़ियों में एक शिकारी घात लगाए बैठा नजर आया। शिकारी की बंदूक का रुख उन बेखबर तैरते राजहंसों की तरफ था। बंदूक को देखकर बच्चा खौफजदा हो गया। उसे मुर्गाबियों का अंजाम याद आ गया। अगले ही लम्हे उसने राजहंसों को बचाने का फैसला किया और शिकारी की बंदूक पर फड़फड़ा कर झपट पड़ा। बंदूक में से एक जोरदार फायर हुआ, मगर उस वक्त तक बंदूक का रुख फिर चुका था। राजहंस तो बच गए, मगर वो खुद जमीन पर गिर पड़ा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका एक बाजू टूट चुका है। उसे अपने जख्मी होने की फिक्र ना थी। तकलीफ के बावजूद वो ये सोचकर खुशी महसूस कर रहा था कि उसकी कोशिश से कई प्यारी प्यारी जानें बच गई थी। ये सोचते सोचते वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद सब हंसों ने आकर बच्चे को घेर लिया। अरे देखो कितना बहादुर बच्चा है, इसने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई है। हाँ, ये हमारा मोहसिन है। अरे तुम सब बातें ही करते रहोगे, देखो ये जख्मी है और बेहोश है, इसे उठाकर अपने घोंसले में ले जाओ, हम इसके अच्छा होने तक इसकी देखभाल करेंगे। चुनाचे वो उसे बड़े प्यार से उठाकर अपने आरामदेह घोंसले में ले गए और उससे कहा, अब तुम्हारा जब तक जी चाहे हमारे साथ रह सकते हो। बच्चा उनकी ये बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा। मैं तो जब तक जिंदा हूँ आप लोगों के साथ ही रहूँगा। आहिस्ता आहिस्ता उसके पर का जख्म ठीक हो गया। एक दिन वो हिम्मत करके घोंसले से बाहर निकला, मगर घोंसला बहुत ऊंचाई पर होने की वजह से वो अचानक फिसलकर नीचे गिरने लगा। मगर ये क्या, वो तो उड़ भी सकता था। वो खुशी से आवाज़ें निकालता हुआ अपने पर फैलाए उड़ता रहा और हवा में कई चक्कर लगाकर झील के पानी में उतर गया और अपने राजहंस दोस्तों के साथ तैरने लगा। उसकी आवाज़ों के जवाब में हंसों ने भी वैसी ही आवाज़ें निकाली। इन आवाज़ों को सुनकर उसे पहली दफ़ा ये मालूम हुआ कि वो किसी बत्तख का बेडौल बच्चा नहीं, बल्कि एक हंस है जो उन छोटी छोटी बत्तखों के बीच में रहकर ऐसा भद्दा और बेडौल मालूम होता था। कुछ ही दिनों में उसके पर अच्छी तरह निकल आए और उसका बदन सफ़ेद बादलों की तरह चमकदार और खूबसूरत निकल आया और वो उन सब के बीच में उसी शान से तैरने लगा।